السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی سیزنز 2 ایپیسوڈ 75 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں ارطغرل توتکن سے کہتا ہے کہ جب تک میں گمشتک کو اپنے جال میں نہ پھنسا لوں تب تک تم اپنے والد اور والدہ کے قاتلوں کو ایک رات کے لیے اور برداشت کر لو، اور وہ غدار عورت جو تمہارے والد کی دوسری بیوی تھی اس سے مسکرا کر ملنا اور نہ چاہتے ہوئے بھی گمشتکن کی اطاعت کرنا۔ آج رات کو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے میں سنگرتکن وہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ سلجان خاتون سے ہی سلامت قبیلے روانہ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد توتکن ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی اور آج آپ نے میرے قبیلے کو بچا لیا ہے، آپ کی مدد میرے لیے انمول ہے۔ اس کے بعد سنگرتکن یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک یہی مقصد ہے کہ گمشتکن اپنے جرموں کا اعتراف کر لے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم نے اگر ایسا کر لیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی جنگ جیتنے کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف سلجان خاتون ہنسی خوشی قبیلے میں پہنچ جاتی ہیں اور ساتھ ہی اس کا سامنا گونجا گل سے ہو جاتا ہے۔ سلجان اس سے کہتی ہے کہ اس قبیلے میں تمہارے دن اب عنقریب پورے ہونے والے ہیں، بہت جلدی تم اپنے انجام پر پہنچ جاؤ گی۔ اس پر گونجا گل کہتی ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو دوبارہ۔ اس کے جواب میں سلجان خاتون کہتی ہیں کہ تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اس دوران توتکن اور ارطغرل بھی واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ توتکن ہائمہ خاتون کے پاس آتا ہے، ان کا ہاتھ چومتا ہے اور ان سے کہتا ہے یہ ہم نے کیا کیا پھپھو، جن لوگوں پر ہم نے بھروسہ کیا، بہت زیادہ اعتبار کیا، ان لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ غداری کی۔ میرے دل اور آنکھوں کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ پائے۔ اب میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سردار کہہ سکوں، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو انسان بھی نہیں کہہ سکتا۔ توتکن بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سنگرتکن اس کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو توتکن، ایسا کرنے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، یہاں تک کہ میں اپنے بیٹے گندوگدو کی گونجا گل کے ساتھ شادی کروانے والی تھی، اور ان لوگوں نے ہمارے یقین اور بھروسے کو توڑ دیا ہے۔ اگر آج ارطغرل نے ہمارے آنکھوں کو اور ہمارے دلوں کو نہ کھولا ہوتا تو ہمارا حال بہت ہی برا ہونا تھا۔ اب ہمیں صرف ایک دن ہی برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس اندھیرے سے نکلیں اور انصاف کا نظام قائم کریں۔ اتنے میں سلجان خاتون اندر آتی ہیں۔ ہائمہ خاتون اس سے فوراً گلے ملتی ہیں اور اس کا حال چال پوچھتی ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے آیت الن خاتون کے بازو پر کائی قبیلے کا نشان لگا دیا ہے، یعنی کہ اس کو تلوار مار کر زخمی کر دیا ہے۔ اس کے بعد توتکن سلجان خاتون سے ملتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے۔ دوسری طرف آیت الن خاتون وہیں پر جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں گونجا گل وہاں پر آتی ہے اور اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے پھپھو۔ آیت الن خاتون کہتی ہے کہ میں ان سے ثبوت حاصل نہیں کر سکی اور وہ دونوں بھاگنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ بانو ججک وہ ثبوت اب ارطغرل کو دے دے گی، ہمیں ہر حال میں ایسا ہونے سے روکنا ہوگا۔ اب سلجان کو مرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو ارطغرل کا ہے، گمشتکن کو چاہیے کہ وہ بھی ارطغرل کو فوراً مار دے۔ اس پر گونجا گل کہتی ہے کہ پھپھو کیا یہ کام آسان ہے؟ اس پر آیت الن خاتون کہتی ہے کہ تم یہ مت بھولو کہ تم ایک مارگریف کی بیٹی ہو۔ ارطغرل ہو یا کوئی بھی شخص ہو، وہ اب گمشتکن سے نہیں بچ سکتا۔ ابھی ہمیں فوراً جا کر تمہارے والد صاحب کو آگاہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف گندوگدو بھی واپس قبیلے کی طرف پہنچ جاتا ہے اور اس کے دماغ میں ساداتین کوپیک کی باتیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ہائمہ خاتون کے خیمے میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ساداتین کوپیک نے آپ لوگوں کو سلام دیا ہے اور گمشتکن صاحب بھی یہاں پر بہت جلدی پہنچنے والے ہیں۔ اب وہ مارگریف بن گئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کا استقبال کریں۔ گندوگدو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی شخص گندوگدو کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا، جس پر گندوگدو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں کہ بیٹھو بیٹا، ہم نے تم سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ دوسری طرف آیت الن خاتون اور گونجا گل بھی واپس اپنے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں۔ آیت الن کہتی ہیں کہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اور ہم بچ گئے ہیں اور اب اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے۔ دوسری طرف گندوگدو وہاں پر پوچھتا ہے کہ خیر ہے، آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے منگولوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا ہے۔ توتکن کہتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ میرے ماموں کے بیٹے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ توتکن کہتا ہے کہ مجھے اپنے والد اور اپنی والدہ کے قاتل کا اصل میں پتہ چل چکا ہے۔ اس کے بعد سنگرتکن کہتا ہے کہ گندوگدو بھائی، آپ کو غفلت سے جگانے کا وقت آ گیا ہے۔
गुंदुगदू हैरान होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही। फिर वो अर्तुगरुल से कहता है अर्तुगरुल ये क्या हो रहा है, क्या तुमने अब कोई नया काम शुरू कर दिया है। इसके बाद वो सब लोग गुंदुगदू को पूरा वाक़या सुनाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कल इंशाल्लाह गमुश्तकिन की बारी है भाई। इसके बाद हाइमा खातून कहती हैं कि बेटा मुझे लगता है कि ये जान के तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि गोंजा गुल भी इस सारे मामले में शामिल है। गुंदुगदू चौंक जाता है और हैरान होकर अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने तुम पर और अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया और उस मनहूस औरत से मैं शादी करने वाला था। इसके बाद हाइमा खातून कहती हैं कि अभी हमारे पास ये बातें करने का वक्त नहीं है, हमें चाहिए कि हम इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। इसके बाद गुंदुगदू अर्तुगरुल से कहता है कि मेरे प्यारे भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। अर्तुगरुल जवाब में कहता है भाई अब आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये मामला आप मुझ पर और तोतकिन पर छोड़ दें। इसके बाद गुंदुगदू कहता है कि तोतकिन और मुझे उन लोगों ने धोखा दिया, वो इसी वजह से मुझे सरदार बनाना चाहते थे। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि भाई हम लोग हार नहीं मानेंगे, अब हम भी उनके साथ ऐसा ही खेल खेलेंगे जैसा उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला। इसके बाद संगुर्तकिन कहता है तो जब हमारा मारग्रेव कबीले में आए तो हमें चाहिए कि हम उससे बहुत मुनासिब तरीके से मिलें। इस पर अर्तुगरुल हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद गुंदुगदू को बाजू में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वह नीचे गिर जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं और उसके पास जाते हैं। इसके बाद हाइमा खातून कहती हैं कि फ़ौरन से हकीम अर्तुग साहब को बुलाओ। दूसरी तरफ बानो जिजिक एक गार के अंदर मौजूद थी, जहाँ पर गायकली और इब्नुल अरबी भी मौजूद थे। इस दौरान इब्नुल अरबी बानो जिजिक को इस्लामी बातें बताते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग फ़ौरन खैमे में पहुंच जाता है, गुंदुगदू का चेकअप करता है और बताता है गुंदुगदू भाई आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार है और आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। इसके बाद अर्तुगरुल हकीम अर्कुद साहब से ये कहता है कि मेरी सोच के मुताबिक गुंदुगदू का बाजू बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर हकीम अर्तुग कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद गुंदुगदू कहता है कि अर्तुग साहब ये मेरी फैमिली है, मेरे ख़ानदान वाले हैं, मैं कुछ भी बातें इनसे नहीं छुपाना चाहता। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि ये फोड़ा जो तुम्हारे बाजू पर निकला है ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि एक ही रात में ये फोड़ा हड्डी तक पहुँच गया हो। अगर हम इसको खुश्क ना कर सके और इसको ठीक ना कर सके तो मैं इसके अंजाम से खौफज़दा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये खून में शामिल हो सकता है जिससे गुंदुगदू साहब की जान भी जा सकती है। लेकिन मुझे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है, इंशाअल्लाह हम इस फोड़े को खुश्क कर देंगे। इसके नतीजे में हमें मजबूरन इनका बाजू काटना भी पड़ सकता है। ये बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गम की हालत में हाइमा खातून सलजान खातून से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद गुंदुगदू सलजान खातून से कहता है कि मैंने तुमसे पहले जो कुछ भी किया है इसके बाद तो मैं तुमसे नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहता। मुझे इस बात का तो यकीन है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने आप को माफ़ कर भी सकूँगा या नहीं। मैं वो बातें हरगिज़ नहीं भूल सकता और वो लड़ाइयाँ नहीं भूल सकता जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं। सलजान खातून कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने आपको धोखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे मोहब्बत करना कम नहीं किया और मैं ये भी जानती हूँ कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते रहे हैं। दूसरी तरफ गमुश्तकिन कबीले में पहुँच जाता है और उसके साथ सल्जूक रियासत के बहुत सारे सिपाही होते हैं, क्योंकि अब वो मारग्रेव बन गया था और इस वजह से उसके साथ एक प्रोटोकॉल था। साथ ही कबीले के लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और गमुश्तकिन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। हाइमा खातून और बाकी कबीले के लोग भी उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। इस दौरान दौन अभी तक पोल के साथ ही बंधा होता है। गमुश्तकिन घोड़े से उतरता है और आगे चलता है। इस पर हाइमा खातून उसको खुशामदीद करती हैं। इस पर गमुश्तकिन कहता है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। इसके बाद तोतकिन भी उसको खुशामदीद कहता है, जो कि ना चाहते हुए होता है, और उसको फिर अंदर चलने को कहता है। इसके बाद सब अहम लोग अंदर खैमे में चले जाते हैं। इस दौरान जिरगे के कुछ लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। गमुश्तकिन सरदार की सीट पर बैठता है और सबको बैठने को कहता है। इतने में एक सिपाही बोरी लेकर आता है। फिर गमुश्तकिन कहता है कि अगर आप लोग कबूल करें तो मैं आप लोगों को सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। इसको आप रियासत की तरफ से एक तोहफ़ा समझ सकते हैं। इसके बाद दो सिपाही सोने के सिक्कों वाली बोरी उठाकर उसके पास लेकर आते हैं। इसके बाद तोतकिन खड़ा होता है और ना चाहते हुए उसका हाथ चूमता है और उसको मुबारकबाद देता है। गमुश्तकिन उसको सोने के सिक्कों वाली एक पोटली देता है। तोतकिन वो पोटली लेकर बैठ जाता है। इसके बाद हाइमा खातून गमुश्तकिन को वेलकम करती हैं और उनसे कहती हैं
कि आज रात मैं आप लोगों की दावत करना चाहती हूँ। इस पर गमुश्तकिन कहता है कि हाइमा खातून, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। फिर वो हाइमा खातून को भी सिक्कों की एक पोटली देता है। इतने में गुंदुगदू भी वहाँ पर आ जाता है और सब लोगों को सलाम कहता है। फिर वो गमुश्तकिन को का हाथ चूमता है और उसको मुबारकबाद देता है। गमुश्तकिन उसको भी एक सोने की पोटली देता है और उसको कहता है कि ये अपने सिपाहियों के साथ बांट लेना। इसके बाद सगुर्तकिन खड़ा होता है और उसका हाथ चूमता है। इस पर गमुश्तकिन कहता है कि तुमने एक दफ़ा फिर से रियासत के साथ सिंसियरिटी का सबूत दिया है। सगुर्तकिन भी सोने की पोटली लेने के बाद कहता है कि ये सोने के सिक्के मैं शहीदों के बच्चों के साथ बांटूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल की बारी आती है। अर्तुगरुल उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने रियासत का मेहरबान चेहरा देख लिया है, अब हम इसका इंसाफ देखेंगे और हर किसी को इंसाफ का सामना करना होगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। जिरगे के लोग हैरानगी से उसको जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद तोतकिन गमुश्तकिन को कहता है कि जब भी अर्तुगरुल इंसाफ की बात करता है वो सारे अमन को ख़राब कर देता है। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब उठकर गमुश्तकिन को मुबारकबाद देते हैं। गमुश्तकिन उसको भी सोने के सिक्कों वाली पोटली देता है। हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि मैं इन सिक्कों को ज़रूरतमंदों के साथ बांटूंगा। इसके बाद जिरगे के बाकी लोग बारी बारी उठकर उसके पास जाते हैं और उसको मुबारकबाद देते हैं और इस तरह गमुश्तकिन सबको एक एक करके सिक्कों की पोटली देता रहता है। खैमे के बाहर तुर्गुद और बामसी एक बर्तन में पानी लेकर दुआन के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को सिपाही रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, इनके पास कोई भी नहीं जा सकता, हमें ऊपर से सख्त हुक्म मिले हैं। लेकिन बामसी और तुर्गुद कहते हैं कि भाई हमें इसको पानी पिलाने दें, हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे और फिर साथ ही चले जाएंगे। इतने में गमुश्तकिन वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर तुर्गुद कहता है कि गमुश्तकिन साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम दुआन को पानी पिलाना चाहते हैं। इस पर गमुश्तकिन कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत, तुम एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को पानी पिलाना चाहते हो। इसके बाद वो फ़ौरन अपने सिपाहियों से कहता है कि इन दोनों को यहाँ से हटा दो। इसके बाद वो सिपाही उन दोनों को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं तो बामसी कहता है कि अच्छा हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तुम पानी पकड़ लो, लेकिन उसको पिला दो। फिर सिपाही वो बर्तन दुआन के पास रख देता है, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, वो पानी नहीं पी सकता था। यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।